Today we will learn how we can set the connection between MySQL and Python. This is the last part of data handling using Panda, and after today the Panda will be done. First of all, we should know what do you mean by import and export of data between the Python and MySQL and why we need it. क्यों करना है, किस लिए जरूरी है. Till now, what we have learned? We have directly entered the data. We created the data frame and learned how to analyze the data in a data frame. Sorting करना, replace करना, index change करना, values change करना, new values add करना. This everything we have learned till now, right? But in actual conditions, suppose you are a programmer, their data is available most of the times या तो database की form में आ रहा है, यूजर या गूगल फॉर्म में एंट्री कर रहा है, यू आर गेटिंग दैट डाटा इन द एक्सेल शीट और CSV और इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है, डायरेक्ट एक डाटा फ्रेम बना बनाया तो यू पीपल आर नॉट गेटिंग और द प्रोग्रामर्स दे आर नॉट गेटिंग, राइट. तो इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो वी नीड व्हाट वी नीड, we require to bring data directly from a database कि directly database से data हमारे पास data frame में आ जाए and then we can work whatever we want to do क्योंकि data frame में काम करना तो हमें आ गया. और if from a database directly we can get the data in a data frame, then analysis of your data is really very easy अगर data frame अच्छे से आ गया then, right. This getting your database directly from your SQL or whatever the database software is there, directly from database and look to data frame, this is called importing data from a database. ठीक है, importing अंदर लाना, data frame बनाना database से. Got it? This is called importing data from a data frame. Now, after analysis, we will be required to store data back to a database. ठीक है, काम हो गया. Then everything must be stored in a database. Database में वापस वो काम store भी होना चाहिए. So sending that back to database, that is called exporting data to a database. I think importing and exporting both meanings are clear. Database to data frame, this is importing, and data frame to back database, this is exporting, right. Now how you will set connections between MySQL and Python, दोनों के बीच में connection कैसे set करेंगे, right. Data from data frame can be read from and written to MySQL database. This already read from and written to means एक exporting है एक importing है, right. Both things can be done. To do this, a connection is required means दोनों के बीच में एक ब्रिज होना चाहिए ना, जिससे चल के हमारा डेटाबेस से डाटा फ्रेम में जाएगा और डाटा फ्रेम से वापस चल के आपके पास डेटाबेस में आएगा. ठीक है, फॉर दैट वी नीड कनेक्शन यूजिंग द पिम्प SQL डेटाबेस ड्राइवर. एक ड्राइवर है जिसका नाम है PYM या PY MySQL, you can call it. ठीक है, and for this driver should be installed in a Python environment. अब ध्यान से देख सुनेंगे, Python environment कहाँ से आएगा अभी सीखते हैं हम ये. And this is the command to install PY MySQL driver. This is a driver, okay, for setting up the connection. After that, SQL is what we will call it. SQL Chemi is a library used to interact with MySQL database by providing the required credentials. This library can be installed using this command, right. Means two libraries. This is the connection driver and it's a library which needs for interaction between your database and MySQL. दोनों के बीच में बातचीत करने में जो help करेगी, this is that library, SQL Chemi, right. And this is the driver. Both we have to install. How we can install? Here the complete screenshot I have shared, but still I will show you. For that, let's open command prompt. Here this is the command prompt. This you will open as run as administrator.
Okay, now your system will ask yes, here it is open. ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया. नाउ साइड में we will open Python. This Python we have opened. Got it? Now environment कैसे देना, जो आ रहा था in Python environment means the library or the location, the folder where your Python is installed. In same location, the installation of both the drivers and connector that should be done. अब let's search out the location, file, open. जैसे करेंगे this window will open. Scripts. Double click on script. And from the address bar, just single click here. Now you can see from keyboard Control C means you have to copy this address, or you can right click and copy. Done. यहाँ का काम हो गया, इसको close किया और minimize. Means right now we have copied that address where our Python is installed. Now we are again back to command prompt. Here what you will do, cd slash enter. What you will see, only C prompt is there, right? Now cd space, cd means change directory. Now we want to get into which, you will paste here. Right click, see मैंने right click किया और pasted, या फिर keyboard से you can press Control V, right? Here this is done, just press enter. Now you can see अब prompt इतना लंबा बन गया. Means now we are in Python 3.9, उसकी scripts folder के अंदर अब हम हैं. Got it? Now what we want to install, हमें पहला हमारा जो driver है that we want to install, that driver is pip install py mysql. Okay, press enter. It will start the processing, but I have already installed, that's why it is showing already satisfied. I am just showing you how you will do that. Okay, and I have shared the screenshot of installing also. Right, now second one is जो दोनों के बीच में बातचीत करने में हेल्प करता है, that connector. Okay, that library actually pip install और उसका नाम है SQL ALCHEMY, right? Press enter. Again it is showing already satisfied because we have installed it, we have done it. Okay, आपके command prompt का काम खत्म. I am closing it. I think till here it's clear. In command prompt, in C prompt, we will go into the Python environment, and after that we will install these two libraries or connectors. Got it? अब आगे चलते हैं. Now for setting connections between the MySQL and Python, once SQL Chemi is installed, ये install तो हमने कर ही लिया. It provides a function create engine, एक function create engine, function का नाम है create engine, that enables this connection to be established. Means this function we will use. The string inside the function is known as connection string. जो ये राउंड ब्रेसेस है, इन दिस ब्रेसेस वी विल पुट अ स्ट्रिंग. एक लंबी सी कमांड हम लिखेंगे, अभी हम सीखेंगे वही. दैट इज कॉल्ड कनेक्शन स्ट्रिंग. दैट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स. उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक आपकी सीक्वल कौन से पोर्ट पे है, आपका यूजर नेम क्या है, आपकी सीक्वल का पासवर्ड क्या है, आपकी सीक्वल का पोर्ट कौन सा है, होस्ट कौन है, ऑल दोज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीक्वल. भाई कनेक्शन करना है, किसी के घर जाना है तो उसके घर का एड्रेस, रास्ता, सिटी, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एवरीथिंग वी शुड नो ना. तो द सेम थिंग this create engine or SQL Chemi is doing through this connection string. Okay, and this function returns an engine object. एक engine object बनता है, means एक variable engine नाम से, उसके अंदर हम ये पूरी कमांड सेव करते हैं. राइट, लेट्स सी. अब ये कमांड ध्यान से देखना है. कनेक्शन ऑब्जेक्ट, इंजन ऑब्जेक्ट वी हैव क्रिएटेड, उसका नाम दिया इंजन, देन इक्वल टू साइन, फंक्शन लगाया क्रिएट इंजन. ठीक है, इट्स अ फंक्शन ऑफ SQL Chemi लाइब्रेरी.
ठीक है। अब इन मैनी ऑफ द फंक्शन दिस फंक्शन रन्स लाइक दिस ओनली, ऐसे ही चल जाता है। लेकिन जहां पर भी ये फंक्शन नहीं रन करे तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ विच लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी का फंक्शन है SQL AL चैमी, इसका फंक्शन है। तो जैसे हम PD डॉट डाटा फ्रेम करते हैं, इन द सेम वे हम SQL AL चैमी डॉट कर देंगे इसके आगे, ताकि पाइथन को पता चले भाई कौन सी लाइब्रेरी का ये फंक्शन उठाना है आपको। गॉट इट। अंदर चलते हैं। हेयर ड्राइवर, आपकी जो भी पाइथन और सीक्वल का कनेक्टर है उसका कौन सा ड्राइवर आपने किया, ड्राइवर का नाम आएगा। देन आपकी सीक्वल का यूजर नेम, देन सीक्वल का पासवर्ड, देन सीक्वल कौन से होस्ट पे इंस्टॉल्ड है, सीक्वल के पोर्ट का नाम क्या है, और आपके डेटाबेस का नाम क्या है। ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू मेंशन, राइट। हेयर देखो मैं दोबारा बताइए, ड्राइवर सब यही लिखेंगे MySQL प्लस py MySQL, राइट। यूजर नेम, नॉर्मली अगर आपने नॉर्मल सिचुएशन में इंस्टॉल किया, अपनी कोई कस्टमाइजेशन नहीं किया है, देन योर यूजर नेम इज रूट। पासवर्ड वो तो सबका इंडिविजुअल है, राइट। whatever at the time of installation, whatever the password you have set, that password. Then port, by default सबका port 3306 होता है if any customization is not done, ठीक है। तो maximum of things आपको already बता रहे हैं हम। Then name of the database, अब SQL में जिस भी database में आपने काम किया है, that database जिससे आप link करना चाह रहे हैं, the name of that database. This is how we can set connection between SQL and Python. Now for importing, मीन्स सीक्वल में डेटाबेस बना है, उसको हमें यहाँ देखना है अपने इसमें, राइट। कैसे देखेंगे, लेट्स सी। फॉर इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम MySQL टू pandas, basically refer to the process for reading a table from MySQL database and loading it to the panda. मीन्स MySQL database को हम panda में लोड करेंगे into a data frame. How it can be done? आफ्टर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, एक बार कनेक्शन सेट हो गया, अभी हमारा हुआ नहीं है, हमने किया ही नहीं अभी कनेक्शन सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेट कनेक्शन, देन आफ्टर सेटिंग अप द कनेक्शन these 3 types of commands can be run. कमांड क्या है, panda dot read underscore SQL underscore query, here whatever your query. सपोज मैं देखना चाहती हूँ मेरी टेबल T1 का डाटा select star from T1, तो वो क्वेरी लिखेंगे। और सीक्वल कनेक्शन, जैसे मैंने अभी इंजन एग्जांपल दिखाया था, आपने जो भी कनेक्शन बनाया है उसका नाम। दिस कमांड इज यूज्ड व्हाट, फॉर रीडिंग एनी सीक्वल क्वेरी। नेक्स्ट कमांड इज सेम कमांड है, सिर्फ यहाँ पर सीक्वल टेबल हो जाएगा। इट इज यूज्ड टू रीड एनी ऑफ द सीक्वल टेबल। नेक्स्ट इज यहाँ पर panda dot read और साथ में SQL हो जाएगा। It can read both the commands, either table or either your query. Now let's do it practically. How we can do that? First of all, सबसे पहले आपकी MySQL रेडी होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी बनी हुई है कोई टेबल तो कौन सा डेटाबेस है, टेबल का नाम में पता होना चाहिए। नहीं बनी है तो आप बनाएं। ओके, चलिए लेट मी ओपन MySQL. Okay. Here I have opened MySQL. Password I am putting. Yes. Now let's see कोई डेटाबेस बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। Yes, these are the databases. एक टेस्ट डेटाबेस बना हुआ है। टेस्ट के अंदर चलते हैं, यूज टेस्ट। ओके, नाउ टेस्ट के अंदर आ गए। आप टेस्ट के अंदर टेबल देखें कोई है कि नहीं, शो टेबल्स। यस, हियर इज अ टेबल T1 एंड T2। चलिए टेबल देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T2। ओके, देखो ये एक टेबल बनी हुई है, दिख रही है। और T1 भी देख लेते हैं, दिस इज द टेबल, राइट। मीन्स हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट। टेबल T1 और T2 एनीवन वी कैन वर्क इन, राइट। तो MySQL में अलग से काम करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू चेक, अगर नहीं बनी है तो यू हैव टू क्रिएट।
क्योंकि बनी होगी तभी आप लिंकअप करेंगे ना. नाउ अगेन गोइंग बैक टू पाइथन, इसको मिनिमाइज करते हैं सीक्वल को. हेयर वी आर इन पाइथन, राइट. नाउ बिकॉज डाटा फ्रेम की भी जरूरत पड़ेगी, तो हेयर वी विल इंपोर्ट pandas. First of all, pandas as pd. Done. We are waiting for the prompt. Yes, done. Now जो py MySQL कनेक्टर है, दैट यहां भी हमें उसको बुलाना है, इनवाइट तो करेंगे ना. वी विल इंपोर्ट दैट. इंपोर्ट py MySQL as py. इसका शॉर्ट जो निकनेम हमने दिया py. ठीक है, जहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी वी विल यूज इट, राइट. थर्ड, what we have to import SQLALCHEMY. You can try it without installing that in command prompt also. If it's working then well and good. ठीक है, तीनों यहाँ पर import होंगी. It's done. इसको भी as SQ कुछ कर सकते हैं if you want. It's done. Now जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है दैट वे विल क्रिएट. मैंने बनाया इंजन ऑब्जेक्ट, राइट. इंजन ऑब्जेक्ट है मेरा. दिस इज आवर कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमारा कनेक्शन सेट कर रहा है. ओके, नाउ इक्वल टू कमांड क्या कहती है, क्रिएट अंडरस्कोर इंजन. डन. नाउ द राउंड बेसिस स्टार्ट. नाउ योर ड्राइवर्स, कौन से ड्राइवर है. अब मेरे ड्राइवर क्या है, मैंने बाय डिफॉल्ट बताया सबका ही वही है, MySQL प्लस py MySQL, पाइथन MySQL. py मीन्स पाइथन MySQL. ठीक है, डन. इज टू दो स्लैश आ गए. नाउ व्हाट योर होस्ट नेम मीन्स योर यूजर नेम. My SQL username, because I have not done any customization, तो username is root. Then colon. अब आपकी उसका SQL का पासवर्ड, that is my password is 1234. Then @ अब आपके होस्ट का नाम. If you have not done any of the customization, तो host is localhost. Right? Now colon. आप then name of the port on which your SQL is installed. By default, everyone's port is 3306. If you have not done any customization, right? Then slash. इस कमांड को नोट करके रख लें. Just copy it from there, और you देख के टाइप कर लें and change the credentials as per your software. अगर आपका पासवर्ड 345 है तो 345 लिखेंगे. ठीक है, अगर आपने कस्टमाइजेशन करते टाइम यूजर नेम कुछ और दिया है तो यूजर नेम कुछ और आएगा आपके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग. एंड देन द नेम ऑफ द डेटाबेस. अब मेरा डेटाबेस कौन सा है, टेस्ट है, राइट. कॉलन क्लोज हो गया. दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग जिसकी हम बात कर रहे थे. दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट. कोट्स के अंदर है ना, इसीलिए इसे स्ट्रिंग बोला गया. एंड ब्रैकेट क्लोज. डन. कोई गलती होगी तो बताएगा. देखो एरर आ गया, इसे क्रिएट इंजन ही नहीं मिला. दैट फंक्शन इज नॉट, इसको ढूंढने से भी ये फंक्शन नहीं मिला. मैंने बोला था इन मेनी ऑफ द सिस्टम दिस फंक्शन विल रन, बट इन मैक्सिमम इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. मैं सेम कमांड कॉपी की. अब इसको बताती हूँ भाई ये क्रिएट फंक्शन कहां से लेना है तुझे. इसे लेना है SQLALCHEMY. भाई इस लाइब्रेरी में ये फंक्शन है. ठीक है, मैंने यही बताया ना, फ्रॉम दिस लाइब्रेरी डॉट किया ना कि दिस इज द मेन लाइब्रेरी, इसमें से ये वाला फंक्शन उठाना है. गॉट इट. डन. अब देखते हैं एरर आता है कि नहीं. जस्ट प्रेस एंटर. नो एरर. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेट द कनेक्शन. हमारा कनेक्शन सेट हो गया. डन. दिस इज हाउ वी कैन सेट कनेक्शन बिटवीन पाइथन एंड SQL. अब आपके दोनों लिंक्ड अप है, अब आप कोई भी काम कर सकते हैं. गॉट इट. नाउ सपोज मेरी टेबल T1 वाला, मैं डाटा फ्रेम 1 एक वेरिएबल बनाया मैंने df1. ठीक है, इन दिस आई वांट टू गेट माय टेबल T1's डाटा. अभी मैंने दिखाया ना, इन SQL आई हैव डेटाबेस टेस्ट एंड इन दैट
टू टेबल्स आर देयर, T1 एंड T2. मैं दोनों का डाटा यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं. ठीक है. df1 एनी वेरिएबल यू कैन टेक, मीन्स डाटा फ्रेम बना रहे हैं. pd मीन्स पांडा को ले रहे हैं यहाँ से. पांडा का फंक्शन है रीड, इट्स अ फंक्शन ऑफ पांडास, अंडरस्कोर SQL अंडरस्कोर क्वेरी. हम एक क्वेरी रन करेंगे. ओके. इन द ब्रेसेस वट एवर योर क्वेरी. चलो मैं देखना चाहती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T2. T2 टेबल लेना चाह रहे हैं हम. गॉट इट. T2 हो गया. नाउ कॉमा. अब आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट कौन सा है, मींस कनेक्शन किस चीज से सेट हुआ है, यहाँ बताना है कि भाई हमारा कनेक्शन ऑलरेडी सेट है सीक्वल के साथ, तो इसको बताना है कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट है. हेयर वी हैव टेकन द ऑब्जेक्ट इंजन. ठीक है. तो दिस सेम ऑब्जेक्ट वी विल यूज. यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ऑब्जेक्ट, दिस इंजन. ठीक है. दिस इज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ब्रैकेट क्लोज. राइट. जस्ट प्रेस एंटर. If no, it means command is okay. ये कमांड रन होके आपके df1 में सेव हो गई है. Now print is df1. Print df1. ठीक. T2 में यही डाटा था ना, हमने सीक्वल देखी थी. Yes, this was the T2. Okay, same data was there. चलो df2 में T1 को करते हैं. Equal to pd dot read underscore SQL underscore query in the braces whatever the query you want. मैं डाटा ही देख लेते हैं. easiest query from T1. ओके. कोड क्लोज. नाउ बताना है भाई कौन सा कनेक्शन है आपका, इंजन कनेक्शन है हमारा. एंड प्रेस एंटर. नो एरर, इट मींस इट्स डन. Let's print df2. Yes. देखें सीक्वल में हमने T1 देखी. Yes, this is T1. Same data. Right? Done. This is how we can import data from a database to a data frame. This is how the importing can be done. Got it? Now importing कर ली हमने. अब export means वापस पांडा से डेटाबेस, डाटा फ्रेम से वापस सीक्वल. कैसे देखेंगे, चलिए. एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रॉम पांडा टू सीक्वल बेसिकली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पांडा डाटा फ्रेम टू अ टेबल. पांडा के डाटा फ्रेम को सीक्वल की टेबल में भेजना, सीक्वल के डेटाबेस में भेजना. दिस इज बेसिकली एक्सपोर्टिंग. इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड वी हैव ऑलरेडी रेड. राइट. फॉर दिस पर्पस द फंक्शन विच वी विल यूज, ध्यान से देखेंगे. पांडास मीन्स हम पीडी यूज कर लेते हैं. डॉट जो भी वेरिएबल आपका डाटा फ्रेम, जिस भी वेरिएबल में आपका वो डाटा फ्रेम सेव है, राइट, दैट वेरिएबल डॉट टू सीक्वल इज अ फंक्शन. ठीक है. टू सीक्वल. देन टेबल का नाम, एनी न्यू टेबल नेम यू कैन गिव और एनी ओल्डर टेबल्स नेम यू कैन ऑल्सो यूज. आपकी सीक्वल का कनेक्शन क्या है, इंजन, जो हम बार बार यूज कर रहे हैं. इफ एग्जिस्ट equals to fail, right, replace और append, तीन ऑप्शन यहाँ यूज कर सकते हैं. देन इंडेक्स में ट्रू और false. अब इन सब का यूज क्या है, let's see. The table specifies the name of the table in which we want to create or append the data frame values. I have already told you this is the name of the table. That can be already created table or that can be a very new table. नहीं बनाई हो तब भी हो जाएगा. ठीक है. It is that table will be used to save that data frame in the form of table in that table particularly. Right. Now उसके बाद आता है if exist. In this we can use three arguments. कौन कौन से? What if specifies, this if exist specifies the way the data from the data frame should be entered in a table. Means किस तरीके से the data of your data frame should be saved in the table. कैसे save हो? Number one is fail. Fail means by default it is fail. It indicates a value error if table already exists in the database. अगर वो table already बनी हुई होगी आपके database में तो it will show a value error.
और बाई चांस अगर आप पहली बार करते भी हैं इस विद दिस फेल, तो व्हाट इट विल डू, जो पहले वाली टेबल में डाटा होगा वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा और आपकी टेबल बिल्कुल सिर्फ नाम बन जाएगा और नया डाटा, नाम पुराना डाटा नया। ओके, second option is instead of this fail we can use replace. What that will do, this will, the previous content of table should be updated, means पुराने डाटा को अपडेट कर दो, ठीक है, if will put replace. okay, next is append. इस फेल की जगह append. append का मतलब new add, existing table में नई रो ऐड कर दो. got it? Three arguments here, three attributes we can use in if exist, fail, replace and append. done. now एक और वहां पर हमारा बैक में एक और है इंडेक्स. व्हाट दिस इंडेक्स डज, दिस इंडेक्स बाय डिफॉल्ट दिस इंडेक्स इज ट्रू, अगर कुछ भी नहीं देते तो ट्रू है. इट मीन्स इंडेक्स विल बी कॉपीड. जो डाटा फ्रेम में एक इंडेक्स होता है, वी ऑल नो एवरी डाटा फ्रेम हैव एन इंडेक्स, दैट इंडेक्स विल बी कॉपीड टू MySQL ऑल्सो. ऑटोमेटिकली वो MySQL में आपके इंडेक्स जाएंगे. बट if you don't want that index should be taken to the MySQL, then this index should be put false. got it? chaliye, let's do it. again we are going to Python. I think yes, our connection is already set. ठीक है, means first of all हमें क्या करना है, ये तीनों इंस्टॉल इंपोर्ट करनी है, पांडा, py MySQL and SQL Chemi. ठीक है, then this is the method to set the connection. connection set हो गया. connection set होने के बाद what you have to do, चलिए एक डाटा फ्रेम बना लेते हैं, सिंपल सा बनाए. चलिए डेटा 1 एक डाटा फ्रेम बना रही है, इज इक्वल टू मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाती हूँ 1 2 3 4. बन गया डाटा 1, एक लिस्ट बनी है. डन. अब फ्रॉम दिस लिस्ट लेट्स क्रिएट अ डाटा फ्रेम. डाटा फ्रेम df4 बना देते हैं. ठीक है, इक्वल टू डाटा फ्रेम कैसे बनता है, pd डॉट कैपिटल D डाटा कैपिटल F फ्रेम एंड इन द ब्रेसेस द लिस्ट. हमारी लिस्ट का नाम क्या है, डाटा 1. डन. नो एरर, इट मींस कमांड इज ओके. लेट्स प्रिंट df4. प्रिंट कमांड भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट df4 भी लिख सकते हैं, वट एवर यू वांट. सी दिस इज आवर डाटा फ्रेम. एक डाटा फ्रेम बन गया ना हमारा. नाउ what we will do in this, a specific command which we will use, that is the data frame which you want to export to that data frame name. अब मेरा डाटा फ्रेम कौन सा है, df4. मैंने df4 लिखा, इसको मुझे भेजना है SQL में, तो फंक्शन का नाम है to_SQL. सॉरी कैपिटल हो गया, SQL. डन. ओके, नाउ द नेम ऑफ द टेबल, आपकी टेबल का नाम, वट एवर द टेबल यू वांट. सपोज आई वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल, T3 इज माय टेबल, राइट. इसको मैं कोट्स में लिखती हूँ T3. डन. comma connection object, which is our connection object, that is engine. है ना, हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर नहीं याद है, ऑब्जेक्ट इन विच पोर्ट कौन सा है, होस्ट कौन सा है, ड्राइवर कौन से हैं, पासवर्ड क्या है, यूजर नेम क्या है, वेर एवर दिस एवरीथिंग वी आर डिफाइनिंग, दैट इज आवर कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ओके, कनेक्शन ऑब्जेक्ट आ गया. नाउ if exist, याद है, if अगर ऑलरेडी है, भाई हमारी तो है नहीं, हमने तो नई बनाई है, तो हम तो क्या कर देंगे, we will do it false or replace whatever you want, that can be done.
चलो मैं रिप्लेस कर दूं. रिप्लेस अगर करते हैं तो हेयर वी कैन यूज T1 एंड T2. ठीक है, मैं इसको फॉल्स ही कर दूं. और अगर रिप्लेस भी कर रहे हैं देन नो इशू, बिकॉज ऑलरेडी इट्स अ न्यू टेबल. किसको रिप्लेस करेगा? नथिंग इज देयर, राइट. एंड कॉमा इंडेक्स इक्वल टू व्हाट शुड आई डू? फॉल्स करें ट्रू करें? चलो फॉल्स कर देते हैं. देन कंप्लीटली आवर चॉइस एंड ब्रैकेट क्लोज. एस एंटर. एरर क्या गड़बड़ कर दी हमने? इफ एग्जिस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. अच्छा, इफ एग्जिस्ट में एस और आना है, राइट. here I'll put S, right. Now press enter. No error, it means it's done. लेकिन यहाँ तो कुछ देख ही नहीं सकते. Where we will go for checking that it's done or not? Table name is T3. ठीक है, database name कौन सा था? कनेक्शन में बताया हुआ ना हमने, database name is what? Test, है ना. तो let's go back to SQL. This is our SQL. Okay, test में हम already हैं. Let's see, show tables करते हैं. Okay, show tables. Press enter. देखो अभी शो टेबल्स किया था, T1 T2 था, बट नाउ T1 T2 एंड T3 भी बन गई है. लेट्स सी T3. सेलेक्ट T3 फ्रॉम, नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T3. स्टार फ्रॉम T3. yes, it's here. And this is how the exporting can be done from data frame to database. Got it? Now एक quick revision है that what we have done, क्योंकि बहुत सारी चीजें की हैं तो 100% आई एम श्योर कि खिचड़ी बनी होगी, लेकिन अगर सीरियली चलेंगे तो nothing is the issue. देखो सबसे पहले what we did, we have installed the connectors through command prompt, and that command prompt must be run in administrator mode and in Python environment. सबसे important चीज. Okay, next is we will start Python. In Python we will import all the packages. Panda import की, py SQL import की, और SQL Chemi import की, right. Then in SQL, if already database is there, then okay. Otherwise, we will create database as well as table also. Okay. Then open and establish a connection to database using Python. Yeah, the connection object banaya, that connection should be kept. After that, after creating the connection object, importing and exporting whatever you want, that can be done. Right? That's it for now.